सो वेलकम बैक मैवरिक्स। जैसा कि हमने ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया है इंडिया का, ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। ये सेकंड वीडियो है ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। हमने हिमालय रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के थ्रू। Born from the pristine snows high in the Himalaya, this is the Ganga, one of the mightiest rivers in the world, a giver of life to one of the most diverse ecosystems on the planet. The most sacred river on earth. Flowing over 2,500 kilometers across the heart of India. The Ganga nourishes one of the most densely populated regions in the world, nurturing life in its fertile waters. A lifeline actually to over 600 million people, like a true mother. A timeless connection between the Ganga and its people has existed for centuries. For Indians, the Ganga is more than a river. I remember standing here, watching it, the Ganges, along with my father, many years ago. Where is the Ganga that I saw? Mother of all mothers, giver of life. For the last decade, rejuvenating the Ganga basin has become one of the most important and crucial missions for India. On the outskirts of Varanasi, several farming villages around the river are turning towards organic methods, putting a stop to toxic pesticides making their way to the river. The rejuvenation of the river, the Ganga, gave the dolphins a fighting chance for survival. And today, a large population exists here and thrives here. Once again, it goes to show that if you give nature a chance, it bounces back. All we've got to do is to take the first step towards conservation and protection. In 2019 Kumbh, they anticipated probably 10 crore people or 100 million people, but because of the purity of the water which was ensured there, and because of the facilities of toilets etc. which were provided by Namami Gange, we had over 200 million people visiting it. This is a record of sort, and that has been acknowledged by many pilgrims and the religious leaders who had visited that place during the Kumbh. Millions of litres of toxic wastewater were being released into the Ganga every day from countless sources. Kanpur has been a kind of symbol of pollution in Ganga for decades. People used to refer to Kanpur that if you can clean Kanpur, then perhaps Ganga can be cleaned. The Namami Gange program that is deploying about $2.6 billion in various rejuvenation projects across the Ganga basin. These super specialized cameras attached to drones have remotely located and mapped down the plumes of pollutants in lakes around Kanpur and in polluted tributaries of the Ganga. Increased sewage treatment capacities are now being planned in most hotspots along the basin, from Rishikesh and Varanasi to Patna and Bhagalpur, to ensure that the untreated sewage does not flow into the river. With the power of people and technology, there is hope to preserve this mighty river. It is time we understood
our beloved Ganga a bit more. The Ganga belongs to you, the citizen, the people, to protect and nurture. तो जैसा कि हमने देखा, द गंगा रिवर गंगा रिवर इज नॉट जस्ट ए रिवर बट ए सिविलाइजेशन इन itself, originating from the Gangotri Glacier in Uttarakhand. It traveled through Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal before merging into Bay of Bengal. गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसके फ्लड प्लेन एग्रीकल्चर के लिए बून है, which is providing livelihood to millions. However, pollution, climate change, and over-extraction have posed serious threat to its health. तो इस लेक्चर में हम गंगा रिवर सिस्टम के जियोलॉजिकल फीचर्स, ट्रिब्यूटरीज, सिग्निफिकेंस एंड एसोसिएटेड चैलेंज को एक्सप्लोर करेंगे. हम आल्सो देखेंगे कि what are the key initiatives like Namami Ganga, which is aimed for its conservation. Ultimately, understanding the Ganga is crucial for both India's environment and economy. Okay, so as we can see on the screen, the Ganga is India's most vital river, both in terms of basin size and कल्चरल इम्पोर्टेंस. अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पे नियर अबाउट 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया. तो इससे आप इस रिवर का सिग्निफिकेंस देख सकते हो, कल्चरल सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है. सो गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तराखंड, इनिशियली नोन एज भागीरथी. आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि देवप्रयाग में गंगा बनती है. वहाँ पे भागीरथी, अलकनंदा जब आपस में मिलते हैं तो वो गंगा को फॉर्म करते हैं. अगर आप मंदाकिनी देख लो, वो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है. धौली गंगा भी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है और पिंदर भी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है. सो अगर आपको प्रीलिम से क्वेश्चन आया कि मंदाकिनी, धौली गंगा एंड पिंदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, भागीरथी और अलकनंदा, तो क्या आंसर होगा आपका? ऑब्वियसली अलकनंदा, क्योंकि गंगा अभी बनी नहीं है. गंगा कब बनेगी? जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में कॉन्फ्लुएंस करेंगी, ज्वाइन करेंगी. जब दोनों ज्वाइन करेंगी देन इट विल फॉर्म गंगा रिवर. ओके, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब इसकी की ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की, एंड व्हाट आर इट्स हाइड्रोलॉजिकल डायनेमिक्स. आप देख सकते हो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई. इसकी ट्रिब्यूटरी को हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से याद कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी. कोशी इज द सोरो ऑफ बिहार. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कोशी इन डिटेल. महानंदा ओरिजिनेट इन द हिमालयाज ensuring perennial water supply. What is the meaning of perennial water supply? हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना. What is the meaning of perennial? Himalayan river is considered as perennial. Why? Because
बिकॉज ऑफ दी क्या आंसर होगा? क्योंकि ये पूरा साल फ्लो करती है, दैट इज वाई इट इज कंसीडर एज पेरिनियल। ओके, ये थी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। अब हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यमुना, सोन, चंबल, बेतवा, केन, दामोदर primarily originate from the peninsular plateau, contributing seasonally। अब जो मेरी ना, अगर आप मान लो यूपीएससी ना एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसा भी पूछ सकता है कि ऑल द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज कंसिडर्ड एज पेरिनियल रिवर। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, बिकॉज जो मेरी पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर्स है ना, वो पेरिनियल नहीं है। क्यों पेरिनियल नहीं है? क्योंकि उसका जो ओरिजिन है, उसका सोर्स क्या है रिवर का? उसका सोर्स है ग्राउंड वाटर एंड मॉनसून। ग्लेशियर सोर्स नहीं है तो कंटिन्यू सप्लाई नहीं रहेगी पूरा साल, तो उसको हम पेरिनियल नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। As you already know, it is originated from the Yamuna Glacier. और उसकी जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना यमुना रिवर की, जो यमुना रिवर है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यमुनेत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, जो इसकी यमुना की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, वह चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ओके, अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, नो, ऐसे नहीं, ऐसे डज यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो क्या क्वेश्चन आंसर होगा आपका? यस, इट इज। यमुना भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, चाहे आपस में यमुना कितनी बड़ी बड़ी रिवर हो, बट हमें पता था ना ट्रिब्यूटरी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर बड़ी रिवर में छोटी रिवर मर्ज हो रही है एज कंपेयर टू गंगा, यमुना छोटी रिवर है, सो यमुना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हिंडन, रिन, सेंगर और वरुणा। ओके, basin and course of flow. Ganga enters the plain at Haridwar, flows southeast before splitting into Bhagirathi and Padma in the West Bengal. टोटल लेंथ हमें पता है 2525 किलोमीटर। स्टेट्स कवर, उत्तराखंड में तो ओरिजिनेट होती हैं तो वहाँ पे तो होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ओके, बेसिन साइज कितना है? 8.6 लाख किलोमीटर। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर बेसिन, वी ऑलरेडी डिस्कस इन दी प्रीवियस एपिसोड। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? सोचो यार, गंगा रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इसमें इंडिया में, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? क्या लगता है क्या हो सकता है? वीडियो को पॉज करो और सोचो। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के लिए पानी प्रोवाइड कराती है ये रिवर, पानी पीने के लिए और हमारी इंडस्ट्रीज को। इट आल्सो सपोर्ट्स मेजर इरिगेशन नेटवर्क एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इट सस्टेन्स डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इंक्लूडिंग की अर्बन सेंटर्स। अगर आप इंडिया में ना देखो ना, तो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन सी है? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। उसके पीछे रीजन क्या है? गंगा रिवर। अब आपको पता लग गया कि क्यों इतना डेंसली पॉपुलेटेड है बिहार, आपका
यूपी और वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द रिवर फ्रॉम द एजेस, अभी नहीं हजारों सालों से। Environmental and strategic consideration. It is vulnerable to glacier retreat, pollution, and sedimentation. Why it is vulnerable to glacier retreat? Because of the climate change. और pollution का तो हमें पता ही है. And sedimentation. It is integral to India water security. It influences regional hydropolitics, especially with Bangladesh and Nepal. Conservation effort. So, such as Namami Ganga and Ganga Action Plan aim to long-term sustainability, which is proposed to ensure the cleanliness and sustainable use of Ganga River. Ganga River Delta. So हम एक अभी वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे, दो वीडियोस देखेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज डेल्टा, हाउ डेल्टा इज फॉर्म्ड, और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे about the significance of Ganga River Delta. Okay, so let's understand this concept through this video. In this video, we will learn how deltas are formed. These are landforms created by deposition of sediment that is carried by a river. We know that when rivers flow, it carries a lot of sediments and rocks. The greater the flow, the more sediment it will carry. As soon as the flow of the river slows down, sediments in rivers get deposited. You will notice that large heavier particles like pebbles, rocks and sand are deposited first. After that, lighter material like silt and clay gets deposited. So what I'm trying to say is that you will find these deltas where the speed of the river is slow. When river starts to move slowly, that is when the sediments get accumulated. Deltas usually occur where rivers enter an ocean, sea, estuary, lake, reservoir, etc. Apart from these places, you will find deltas at places where the river moves slowly. That's all you have to remember. In India, you will find deltas at all those places where major rivers meets the Bay of Bengal. For example, the Sundarban Delta, Godavari River Delta, Kaveri River Delta, Mahanadi River Delta, Krishna. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. These are the important deltas of India. सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछे. ओके, तो ये थी फर्स्ट वीडियो. Krishna River Delta, Bhitarkanika Delta. भितरकनिका. अब हम देखेंगे सेकंड वीडियो. ऑल्दो हमने डेल्टा की फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस एपिसोड्स में, पर मैं एज ए रिवीजन लेके आया ताकि आप डेल्टा की सिग्निफिकेंस क्या है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वो आप अच्छे से समझ सको. सो लेट्स वॉच दिस वीडियो, अर्थ फ्रॉम सरफेस, अबाउट द गंगा डेल्टा. इन इंग्लिश दे कॉल्ड इट एज गेंजिस, बट हम इंग्लिश में भी गंगा ही बोलेंगे, गेंजिस नहीं. Hi, I'm Ramina Percy and welcome back to Earth from Space. Today the Copernicus Sentinel-3 mission takes us over the Ganges Delta, the largest river delta in the world. Covering an area of around 100,000 square kilometers, the Ganges Delta lies in both Bangladesh and the state of West Bengal, in India. The delta is formed mainly by the large sediment-laden waters of the Ganges and Brahmaputra rivers. The riverbed of the Ganges can be seen on the left of the image, while Brahmaputra can be seen to the right. The snow-covered Himalayas can be seen at the top of the image. The Ganges River carries fertile soil and nutrients, which it deposits across its vast delta floodplain. The river flows for over 2,400 kilometers from the Himalayas before emptying into the Bay of Bengal. ये एस फॉर्म में रिवर फ्लो कर रही है, ऐसा क्यों? और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं?
कमेंट सेक्शन में बताओ। World's largest bay. It is here where the murky colored waters mix with the darker colored waters of the Indian Ocean. The delta is largely covered with a swamp forest, known as the Sundarbans, and can be seen in dark green near the coast with several rivers snaking through it. The Sundarbans, which translates as beautiful forest in Bengali, are the world's largest mangrove forest and provide a critical habitat for numerous species, including the Bengal tiger and the Indian python. The city of Kolkata is visible near the Sundarbans, in the lower center of the image. With over 14 million inhabitants, Kolkata is one of India's largest cities and is the dominant urban center of eastern India. Dhaka, the capital of Bangladesh, can be seen in the lower right of the image. Dhaka is Bangladesh's most populous city and is one of the largest metropolises in South Asia. With a population of over 100 million people, the delta is one of the most densely populated deltas in the world and is extremely vulnerable to climate change. The residents of this region are particularly at risk from repeated catastrophic floods due to heavy runoff of meltwater from the Himalayas, intense rainfall during the monsoon season, and from accelerated sea level rise. Satellites tracking the changing height of the ocean's surface show the global mean sea level has risen, on average, by just over 3 millimeters each year since 1993. Satellite altimetry measurements also revealed that over the last few years, the global ocean has risen, on average, 4.8 millimeters a year. Sea level rise is a global issue, but regional differences in sea level rise put some places at risk more than others. In the coming decades, Asia is likely to feel the worst effects because of the number of people living in low-lying coastal regions. Bangladesh, India, China, Vietnam, Indonesia, and Thailand are home to the greatest number of people who today live on land that could be threatened by permanent inundation by 2100. It is vital that the changing height of the sea surface continues to be closely monitored over the coming decades. Set to launch next month, the Copernicus Sentinel-6 mission will be key in undertaking this important role until at least 2030. Renamed in honor of the former director of NASA's Earth Science Division, the Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich satellite is the first ESA-developed satellite to be given a ride into space on the SpaceX Falcon 9 rocket, the world's first orbital-class reusable rocket. Once safely in orbit, Copernicus Sentinel-6 will continue the long-term record of reference sea surface height measurements that was started in 1992. And that brings us to the end of this edition. Don't forget to like and subscribe to the European Space Agency channel. I'm Rami. तो हमने दो वीडियोस देखी। एक में हमने देखा कि डेल्टा फॉर्म कैसे होता है, और सेकंड वीडियो में देखा जो गंगा रिवर डेल्टा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो हम आगे भी यही डिस्कस करेंगे। द गंगा रिवर डेल्टा, आल्सो नोन एज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, it is the largest delta in the world and is located in India and Bangladesh. It is formed by the confluence of the Ganga, Brahmaputra, Meghna rivers before they empty into Bay of Bengal. तो की फीचर क्या होंगे गंगा रिवर डेल्टा के? जियोग्राफिकल एक्सटेंट, इट कवर 100,000 स्क्वायर किलोमीटर, stretching across West Bengal, India and Bangladesh. 55 to 60% जो एरिया है ना सुंदरबन डेल्टा का, वो बांग्लादेश में है, और 40 to 45% एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एग्जैक्ट फिगर डिस्कस की है इस सुंदरबन डेल्टा की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेल्टा ऑफ इंडिया। द हुगली रिवर, ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा, फ्लो through India, while the Padma River, main distributary, flow into Bangladesh. So हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ा था पर हमने डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं पढ़ा था। तो ये आपको जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब है। ओके, फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर, फर्स्ट इसका की फीचर है जियोग्राफिकल एक्सटेंट, सेकंड है फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड ड्यू टू द एल्यूवियल सोइल डिपॉजिट्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है
द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन को द भावर रीजन, द तराई रीजन, बांगर, इस तरह 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट्स। इसमें मेजर क्रॉप्स कौन सी होती है? राइस, जूट, टी, शुगर केन एंड पल्सेस। हमने वन ऑफ द एक एपिसोड में डिस्कस भी किया था सिग्निफिकेंस ऑफ जूट फॉर इंडिया। ओके, तो वो कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में। राइस यूपी बिहार में, शुगर केन भी यूपी बिहार में, बिकॉज ऑफ द रिच फर्टाइल रीजन एंड द इजिली अवेलेबल वाटर रिसोर्स बिकॉज ऑफ द रिवर। ग्राउंड वाटर भी काफ़ी है इन रीजन्स में। So third would be Sundarbans. We already discussed in detail about Sundarbans. Home to the Sundarbans, the largest tidal helophytic mangrove forest in the world. It is a UNESCO World Heritage Site, famous for Royal Bengal tiger and rich biodiversity. Economic importance. Economic importance तो अगर रिवर की है तो उसकी डेल्टा की भी बहुत ज़्यादा होगी। Supporting fishing, agriculture, trade and industries. कोलकाता एंड हल्दिया आर दी मेजर पोर्ट्स फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। जो गंगा रिवर डेल्टा है वहाँ पे कौन से मेजर पोर्ट है, तो हम लिख सकते हैं कोलकाता एंड हल्दिया। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी है, और वो तो ड्यू टू दी क्लाइमेट चेंज एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ दे आर degrading the environment. So coastal erosion, rising sea level, cyclones and frequent floods, salinization due to the sea water intrusion affect agriculture. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कोस्टल रीजन के। और जो मेरे मैनग्रूव्स है सुंदरबंस में और जो कोस्टल रीजन में, उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है हमने डिटेल में डिस्कस किया है। So Ganga Delta is an ecological and economic lifeline, but also faces a climate change threat, which requiring sustainable conservation efforts. हमारी काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती है, हमें काफ़ी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है गंगा रिवर और गंगा रिवर डेल्टा। तो इसकी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है इन सारे रिसोर्सेज का। सो गंगा रिवर डॉल्फिन। So let's watch this video to understand the significance of Ganga River dolphin. Platanista gangetica, the scientific name for South Asian river dolphins, has so far included both the Ganges river dolphin of India and the Indus river dolphin of Pakistan. But now, a new research conducted over a span of 20 years has confirmed that the endangered Indus and Ganges river dolphins are actually separate species. The Ganges river dolphin, known as Platanista gangetica, is primarily found in the Ganga and Brahmaputra rivers and their tributaries in India, Bangladesh and Nepal. The Indus river दोनों important है, ऑल्दो दोनों के स्टार्टिंग नेम सेम है। प्लेटेनिस्टा इंडस की माइनर होगी और गंगा की गैंगटिका होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, नोट इट डाउन। dolphin, Platanista gangetica minor, is found in the main channel of the Indus River in Pakistan and in the river Beas, a tributary of the Indus, in Punjab in India. From the 1970s until 1998, they were regarded as separate species. In 1998, however, their classification was changed from 2 separate species to subspecies of a single species, that is Platanista gangetica. The research study was a 2-decade-long collaboration between Patna University in India, WWF Pakistan, University of St. Andrews and the Southwest Fisheries Science Center of the National Oceanic and Atmospheric Administration in the US. The study has been published in the journal Marine Mammal Science, the link to which you can find in the description box below. The researchers studied the skulls of the 2 dolphins stored in different... पहले इन दोनों डॉल्फिन को ना सेम ही माना जाता था, बट जैसे कि हमने देखा कि आफ्टर दिस स्टडी दे आर कंसिडर्ड एज द डिफरेंट स्पीशीज।
क्योंकि जब स्कल्स की खोज हुई, साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, तो उससे हमें पता लगा कि दोनों स्पीशीज मे बी अपीयर्ड एज सेम बट बोथ आर डिफरेंट. Parts of the world collected over different periods of time. The paper shows how the two river dolphin species, both of which are endangered, have different numbers of teeth, coloration, growth patterns, and skull shapes, as well as clear genetic differences. The team says that recognizing these differences is extremely important for conservation of both the species, as only a few thousand individuals of each remain. The researchers hope that their work will bring attention to these animals. Both the Indus and Ganges river dolphins live in naturally muddy rivers. Over millions of years of evolution, they have lost their eyesight and instead rely on a sophisticated sonar system to navigate and catch prey. Both species are listed as endangered on the IUCN Red List. Their numbers have dwindled because of accidental entanglement and drowning in fishing nets, pollution of their waterways, and construction of hydropower dams on the respective rivers. Although हम जब environment के बारे में डिस्कस करेंगे अलग से, जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हम देखेंगे IUCN रेड लिस्ट, पर अभी आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और पता करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUCN रेड लिस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके. River dolphins, which occur primarily in Pakistan, have achieved an impressive recovery over the last 20 years, with numbers going up from approximately 1200 in 2001 to almost 2. एक बात आपने नोटिस की, इस डॉल्फिन की आंखें नहीं है, ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड डॉल्फिन. 1000 in 2017, despite an 80% decline in the extent of their range. Meanwhile, the population of Ganges river dolphins is estimated to be about 1200 to 1800 individuals across Bangladesh, India, and Nepal. While the Modi government had announced the launch of the Project Dolphin in August last year, the details of the project is yet to be finalized at the Environment Ministry. The final decision on the validity of the new species will be made by the Committee on Taxonomy of the Society of Marine Mammalogy in the next. ये ना पुरानी वीडियो थी, नियर अबाउट 1 से 2 साल पहले. अभी आपको चेक करना है कि अभी इसको न्यू स्पीशीज डिक्लेयर किया है या नहीं किया है. दिस इज योर होमवर्क. रिवर डॉल्फिन. द गंगा रिवर डॉल्फिन प्लैंटानिस्टा गैंजेटिका is an endangered freshwater species found in the Ganga and Brahmaputra river system. It serves as a keystone species and a bio indicator of river health. ये एक इंडिकेटर है. अगर आपकी डॉल्फिन की प्रेजेंस अच्छी है, अगर डॉल्फिन की हेल्थ अच्छी है, तो वो इंडिकेटर है कि आपकी रिवर की हेल्थ भी अच्छी है. सॉरी. ओके. काफी सारे मेजर थ्रेट्स हैं. एक तो हमें पता है पोल्यूशन तो इंडिया की सभी रिवर्स में एक मेजर थ्रेट है ही है. उससे क्या हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. और क्या है मेजर थ्रेट, डैम कंस्ट्रक्शन, एक्सीडेंटल किलिंग एंड नॉइस पोल्यूशन. हमेशा याद रखना कि अगर जैसे इंसान का हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है, अगर मान लो इंसान 10 किलोमीटर या 100 पुशअप कंप्लीट कर पा रहा है, इसका मतलब वो फिजिकली फिट है. वैसे ही अगर गंगा रिवर डॉल्फिन या ब्रह्मपुत्र रिवर डॉल्फिन काफ़ी सारी अच्छी अमाउंट में है और उनकी हेल्थ अच्छी है, तो उसका मतलब कि जो लाइफ है अंडर वाटर और रिवर की जो हेल्थ है वो अच्छी है. पर क्या हो रहा है, पोल्यूशन के कारण, डैम कंस्ट्रक्शन के कारण और एक्सीडेंटली क्लीनिंग के कारण और नॉइस पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. वी नीड टू सेव द गंगा रिवर डॉल्फिन्स. Although government already initiated the project like Dolphin 2020 and Namami Ganga aim to protect its declining population, but we need to spread awareness about the importance of
Ganga River dolphins. How it is crucial to the ecosystem of the river. Ensuring sustainable river management and strict anti-poaching law is essential for its survival. Okay? So ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र. सो ब्रह्मपुत्र ए पोटेंशियल वाटर वेपन बिकॉज चाइना कंट्रोल ओवर द अपर रीचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, gives it significant strategic leverage over India. With large scale dam construction and potential water diversion project in Tibet, China could manipulate water flow, which impacts India northeast. What will happen due to this? This could lead to a reduced water availability, flash flood, or ecological damage, affecting agriculture and livelihoods. Considering the history of limited data sharing and the current geopolitical tension in between China and India, there is a greater growing fear that China might use water as a pressure tactic. इस वजह से इंडिया के लिए वाटर सिक्योरिटी एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक इशू बन चुका है. So let's watch this video and try to understand the significance of Brahmaputra River for India and what are the concerns are joined with that river system. So let's watch this video. This is the Brahmaputra River, one of the world's mightiest waterways. Recently, it's made headlines again. Why? China has greenlit the construction of what could be the world's largest hydropower dam on the Brahmaputra near the Indian border in Tibet. And this isn't just another infrastructure project. It's a development that has India and Bangladesh on edge. What's causing the alarm? Beyond controlling water flow, there's a looming fear that China could weaponize the dam during conflicts, releasing massive water volumes to flood vulnerable areas. But here's the thing. This isn't China's first controversial move on a transboundary river. In this video, we will dive into China's track record with another major river, the Mekong, and what this latest dam means for India and Bangladesh. This is also important river, Mekong river system. आपको क्या करना है, ये जानना है कि मैकोंग रिवर सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से होती है. ओके, और डिस्चार्ज कहाँ पे होती है और कौन कौन सी कंट्री से पास होती है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है. ये आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कौन कौन सी कंट्री से पास होती है. ये पास होती है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम. ये 6 कंट्रीज हैं, यहाँ से ये एक रिवर पास हो रही है. सोचो कितनी इम्पोर्टेंट और कितना सिग्निफिकेंस है इस रिवर का. तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और 6 कंट्रियों से पास होके ये सी में डिस्चार्ज होती है. द मेकोंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ ईस्ट एशिया. It is a home to world's largest inland fishery. The river provides fresh water, fertile silt, transportation, and cultural identities. तो इसके बारे में भी याद रखना, मैकोंग रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. China's proposed $137 billion hydropower project will be built on the Yerlung Zangbo River, what we call the Brahmaputra, right where it takes a dramatic turn into Arunachal Pradesh and Assam. The scale of the project is massive, but the concerns are even bigger. To understand why, let's take a closer look at another river where China's dams have already made waves, the Mekong.
Flowing through 6 countries, the Mekong is Southeast Asia's lifeblood, sustaining nearly 65 million 65 million people depended and directly or indirectly Mekong River पे. Lifeline है ये 65 million peoples की Mekong River. That's why it is very important in the perspective of UPSC. Million people. Originating in China's Tibetan Plateau, it travels 5,000 kilometers before emptying into the fertile Mekong Delta. But here's the catch. China controls the upper Mekong and its dam building spree has wreaked havoc downstream. अब ना धीरे धीरे आपको ना ये समझ आएगा why China control Tibet region. जो तिब्बत रीजन है इसको टॉवर ऑफ एशिया भी बोलते हैं. काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर. सोचो अगर आप तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो कितना आसान होता उसके साथ समझौते करना, कोई भी डील करना. बट बिकॉज ऑफ चाइना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट पर्टिकुलर एरिया. Chinese dams were blamed for holding back water during a severe drought in 2019, leaving countries like Thailand, Cambodia, and Vietnam struggling. In 2021, the Mekong River Commission accused China of restricting water flow. मैं चाहता हूँ कि आप ना इसके बारे में लिखो, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो और सोचो. क्या चलो ठीक है, जो रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही है चाइना में, नो डाउट. बट क्या यूएन में कोई ऐसे क्लोज है, ऐसे लॉज हैं जो डायरेक्ट करें कि चाहे रिवर किसी कंट्री की हो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया ने डील किया है, इंडिया ने एक ट्रीटी के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है. क्या यूएन में या फिर इस पर्टिकुलर रिवर के साथ कोई ट्रीटी है जो कोई डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में हेल्प करे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी ऐसे सर्वाइव कर पाएगी कि जो अपर रीजन है रिवर्स का वो एक पर्टिकुलर कंट्री डोमिनेट करे और जो निचले वाले पार्ट वाले कंट्रीज हैं या नीचे वाले पार्ट वाले जो शहर हैं या सिटीज़ हैं या फिर कोई कंट्रीज़ हैं वो उसके अफेक्ट के कारण उसे डर के रहे? तो इस हिसाब से तो कभी भी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी डिस्प्यूट ख़त्म ही नहीं होंगे. तो कोई ऐसा वे फॉरवर्ड है जिससे ये डिस्प्यूट्स परमानेंटली ख़त्म हो जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है क्योंकि वाटर इज़ द एसेंशियल फॉर लाइफ, ह्यूमन लाइफ, उस पर सबका हक है या किसी का भी हक नहीं है? वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वहाँ की कोई भी नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि वाटर तो सबको चाहिए. अगर कोई कंट्री उसको एज ए वेपन यूज़ कर रही है, डज इट इज़ एक्सेप्टेबल इन द 21st सेंचुरी? और आल्सो कैन वी कंसिडर इट इज एज एथिकल? इसको दिमाग में रखो और इस तरह से सोचना है हमें. Causing dangerously low levels and devastating local ecosystems, agriculture and fisheries. The results? Farmers lost crops, fishers reported dwindling catches, and even endangered species like the Mekong giant catfish were pushed closer to extinction. Since building its first Mekong dam in 1993, China now operates 11 dams along the main river and 95 on tributaries. The erratic water levels caused by these projects have disrupted agriculture, food security, and livelihoods across the region. India and Bangladesh are understandably wary. While China insists its dam won't harm downstream water flow, the region's hydrology paints a different picture. A study highlights that although China controls 50% of the Brahmaputra basin, it contributes only 22 to 30% of the river's total water flow. The lion's share comes from heavy monsoon rains in India, Bhutan, and Bangladesh. However,
Despite its smaller contribution, China's upstream position gives it significant leverage. It can control the timing and volume of water release, a critical factor in times of political tension. The Brahmaputra Dam project is happening against a backdrop of strained India-China relations, marked by border disputes and a lack of trust. India has repeatedly urged China to ensure that upstream developments don't harm downstream countries. But if history is any indication, as with the Mekong, unilateral control over water flow can have devastating consequences, environmentally, economically, and socially. मे बी आप इस पर्टिकुलर चीज को काफी हल्के में लेंगे, बट चाइना और इंडिया का जो रिलेशंस है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, इस चाइना इस रिवर के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करता है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बिकॉज इट कैन हैम्पर द इंडिया और बांग्लादेश इन ए वेरी drastically. China's track record with the Mekong River raises red flags for the Brahmaputra. Accusations of withholding water data, manipulating flows, and ignoring downstream concerns have made it clear. Unilateral actions on shared rivers often come at a steep cost. For India and Bangladesh, this dam is more than a hydropower project. It's a potential tool of influence in an already fragile geopolitical climate. The construction of this colossal dam on the Brahmaputra isn't just an infrastructure issue. It's a flashpoint in India-China relations. As China moves forward with its plans, the stakes are high for water security, regional stability, and the millions who depend on the river for their survival. So should India be worried? The answer is a cautious yes. If the Brahmaputra follows the Mekong story, the consequences could be far-reaching. Stay tuned as we continue to monitor the developments of this critical issue shaping South Asia's future. Now the question is, how India can address the Brahmaputra water challenge posed by China? तो अभी जो चाइना ने थ्रेट पोज किया है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया कैसे उसे डील करें? ऑल्दो ये अकेला इंडिया को नहीं, बांग्लादेश को भी एक तरह का थ्रेट है, पर इंडिया कैसे चाइना के डैम कंस्ट्रक्शन और पॉसिबल वाटर डाइवर्जन से बचने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज है? फर्स्ट इज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इसमें क्या करना पड़ेगा इंडिया को? इसमें इंडिया को चाइना के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। और उसमें इंडिया को चाइना के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करने चाहिए फॉर वाटर शेयरिंग एंड रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा एक्सचेंज। व्हाई रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा एक्सचेंज? बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ फ्लड। इंटरनेशनल फोरम में भी प्रेशर बिल्ड कर सकता है इंडिया टू इंश्योर वाटर रिस्पॉन्सिबली और रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट अगेंस्ट द चाइना। That is the first thing. That is diplomatic engagement. और क्या कर सकता है इंडिया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया शुड बिल्ड रिजर्वोयर एंड डैम्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम टू रेगुलेट वाटर फ्लो, मिटिगेट फ्लड्स एंड इंश्योर ईयर राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। हम अकेले डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते ना, हमें वर्स्ट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को आगे लेकर जाना है। तो फर्स्ट इज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द थर्ड वुड बी रीजनल कोऑपरेशन।
As we know about the second country which is also affected by this project is Bangladesh. बांग्लादेश और भूटान के साथ कोलैबोरेशन से इंडिया अपनी नेगोशिएशन पावर इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इन कंट्रीज के लिए भी क्रूशियल है. और क्या कर सकता है इंडिया? वाटर कंजर्वेशन एंड डाइवर्जन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट इंडिया को चाइनीज डिस्ट्रप्शन से इंडिपेंडेंट बना सकती है. सो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड डाइवर्जन. और क्या कर सकते हैं आप? क्या है आपके दिमाग में और क्या कर सकते हैं? मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस. सिंस वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स कुड एस्केलेट जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडिया को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी होगी और तिब्बत इशू को डिप्लोमेटिकली लेवरेज करना होगा टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन. अगर इंडिया ये मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच फॉलो करे तो चाइना के वाटर वेपनाइजेशन का इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है. किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इन स्टेप्स के थ्रू. सो लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इसका ओरिजिन एंड इनिशियल कोर्स क्या है? एज वी नो द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द I hope I will pronounce it right. Chemayungdung Glacier in the Kailash Range near Mansarovar Lake. It flows eastwards for 1200 km in the southern Tibetan Plateau, where it is known as Tsangpo, meaning purifier. The Rango Tsangpo is its major right-bank tributary in the Tibet. Entry into India and name change. The river cut a deep gorge in the central Himalaya near Namcha Varva. Upon entering India, west of Sadia, Arunachal Pradesh, it is known as Siang and Diang. After receiving the Diwang and Lohit rivers, left bank tributary, it is called as Brahmaputra. जैसे गंगा के केस में है कि स्टार्टिंग में इसको गंगा नहीं बोलते, बाद में जब दो रिवर जाके आपस में मिलती है तो गंगा बोलते. सेम it is applicable to Brahmaputra. Journey through Assam. The Brahmaputra flows 750 km through Assam Valley, receiving several tributaries. Left bank tributaries Buridihang, Dansari, or right bank tributary Subansari, Kameng, Manas, and Sankos. These are one of the important one in the perspective of UPSC. अब entry into Bangladesh and final course. The river enters Bangladesh near Dhubri, where it is joined by the Tista River, right bank tributary. From this point, it is known as Yamuna. It merges with the Padma River, which ultimately flow into the Bay of Bengal. Key challenges क्या है? The Brahmaputra is known for frequent flood, channel shifting, एंड सेवियर बैंक इरोजन. आपको ये रीज़न बताना है कि जो रिवर्स हैं वो अपना चैनल शिफ्ट क्यों करती है. व्हाट आर द रीज़न? क्या सिर्फ हिमालयन रिवर अपना चैनल शिफ्ट करती है या पेनिनसुलर रिवर भी अपना चैनल शिफ्ट करती है? इसके बारे में आपको सोचना है. हैवी मॉनसून रेन्स एंड लार्ज सेडिमेंट लोड फ्रॉम इट ट्रिब्यूटरी कंट्रीब्यूट टू दिस इश्यूज. हाउ टू क्लीन इंडिया पोल्यूटेड रिवर्स. दिस इज अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर. हम सबको पता है कि इंडिया की रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है बिकॉज ऑफ द सीवरेज, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बिकॉज ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स. बट हाउ वी कैन क्लीन अवर रिवर्स? वी कॉल इट अवर रिवर एज माँ, वी कॉल इट गंगा मैया. बट हाउ वी कैन क्लीन अवर रिवर्स which provides the livelihood to millions people? As we know, there's a fact about the
Mekong River, near about 65 million people depended on the Mekong River. Same case is applicable to Ganga. Millions of people are dependent on the Ganga River, directly or indirectly. So how we can clean our rivers? So there is a short video on the Germany or European river system, how they are cleaning their river. Can we also adapt those strategies in India? So let's watch this video. इस वक्त मैं राइन नदी के किनारे पर हूं। ये नदी 4 देशों से गुजरने के बाद जर्मनी में दाखिल होती है और अभी भी ये बहुत साफ है। भारत में एक ही देश के अंदर बहती हुई नदियां हमसे साफ नहीं हो पा रही हैं। आखिर जर्मनी समेत पश्चिमी यूरोप के देशों ने कैसे किया अपनी बेहद गंदी हो चुकी नदियों को साफ, यही जानेंगे आज पिन एंड पोस्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स के पहाड़ों से निकलने वाली ये नदी दुनिया के सबसे व्यस्त कमर्शियल जलमार्गों में से एक है। इस नदी के किनारे दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट रोटरडाम को ये 6 देशों से जोड़ती है। हर साल इस नदी पर करीब 7,000 जहाज चलते हैं और इन सब के बावजूद इस नदी के पानी की क्वालिटी ये देखिए। अभी भी इस नदी का पानी एकदम चमक रहा है और 1200 किलोमीटर लंबी नदी का पानी साफ रहे। ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं, कहां पे एंट्री करना है, कहां पे एग्जिट करना है। देयर इज अ पैटर्न हियर आल्सो। व्हाट इज द पैटर्न? ये तय करने की जिम्मेदारी 9 इंटरनेशनल स्टेशन और 20 नेशनल स्टेशनों पर है। वो लगातार इस नदी के पानी पर नजर रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नदी हमेशा से इतनी साफ थी? इसका जवाब है नहीं। 1980 के दशक तक ये यूरोप की सबसे गंदी नदियों में से एक थी। इससे बदबू आया करती थी, इसके ऊपर मरी हुई मछलियां तैरती दिखती थी। कैसे उसके बाद यूरोप के सारे देशों ने जर्मनी समेत इस नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया और उसके लिए क्या क्या किया, चलिए आगे इसी को समझते हैं। राइन नदी के किनारे बसे बॉन शहर की आबादी करीब 3 लाख है और यहां ऐसे 4 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। दिल्ली की आबादी बॉन के मुकाबले 60 गुना ज्यादा है। जी हां, 60 गुना ज्यादा। और दिल्ली में ऐसे 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। भारत के बहुत सारे कस्बों में तो ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई अता पता नहीं है। जर्मनी में पूरे अगर देश की बात करें तो 15,000 से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहां देश की 95% आबादी जो पानी इस्तेमाल करती है वो वहां पहुंचता है। वहां उस पानी को साफ किया जाता है। 3 चरणों में पानी को साफ किया जाता है, 3 अलग अलग स्टेप्स में। हर स्टेप्स में पानी से कुछ अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं और कौन कौन सी चीजें निकाली जाती हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह पानी को साफ करने के बाद ही नदियों या जलधाराओं में रिलीज किया जाता है। ये तो हो गई बड़ी नदियों और बड़े शहरों की बात, लेकिन गांवों से गुजरती बलखाती हुई छोटी छोटी नदियों और जलधाराओं का क्या? उनकी सफाई कैसे की जाती है? चलिए इसे समझने के लिए हम गांव की तरफ चलते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं गांवों में। मेरे इस तरफ कई गांव हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाका, और उन दोनों के बीच में बहती है राइन की एक सहायक नदी जी। ये नदी 155 किलोमीटर लंबी है जो आगे जाके राइन में मिल जाएगी। इस नदी के किनारे भी सैकड़ों गांव, कुछ बड़े शहर और कुछ कस्बे बसे हुए हैं। उन सब के लिए भी पानी साफ करने का इंतजाम किया गया है। गांवों का सिस्टम यह है कि 4 या 5 गांवों के बीच में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। उन सारे गांवों का पानी वहीं आता है, उनके घरों का, और उसे साफ करके जलधाराओं में छोड़ा जाता है या नदियों में छोड़ा जाता है। शहरों और कस्बों को उनकी आबादी और जरूरत के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहां लगाए जाते हैं। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ ही बहुत जरूरी है
कि छोटी नदियों के आसपास प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाके छोड़े जाएं, छोटी भी और बड़ी नदियों के किनारे भी। क्योंकि प्लांटों में साफ करने के बाद भी पानी में कुछ माइक्रोबैक्टीरियाज बचे रहते हैं। वो माइक्रोबैक्टीरिया नदी के नेचुरल प्रवाह में, जब नदी का पानी लगातार पत्थरों, रेत और मिट्टी के संपर्क में आता है, वो माइक्रोबैक्टीरिया वहां छनते हैं, उस प्रवाह के दौरान छनते हैं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ साथ नदियों को बीच बीच में सांस लेने के लिए ऐसी जगह दी जाए, ऐसा इलाका दिया जाए जहां प्राकृतिक रूप से जंगल हो या पूरी तरह प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाका हो। जर्मनी में ऐसी छोटी नदियों के किनारे जहां गांव है, वहां खेती के लिए भी कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि वहां बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि अगर उन खेतों में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाने लगा तो बरसात में वो सारा पानी खेतों से बहता हुआ कहीं न कहीं नदी का हिस्सा बन जाएगा और वो कीटनाशक नदियों में घुल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और as we saw in the video, कैसे जर्मनी में हर 4-5 गांव में एक वाटर सीवेज प्लांट है, तो इंडिया में हम कैसे कर सकते हैं? इंडिया की रिवर पोल्यूशन एंड एनक्रोचमेंट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से सेवियरली डिग्रेड हो चुकी हैं रिवर्स। उन्हें क्लीन करने के लिए हमें ना मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। हमें एसटीपीज लगाने पड़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हमें इसे हर सिटी और टाउन्स के पास इंस्टॉल करना होगा ताकि अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली रिवर्स में ना जाए। हमें इंडस्ट्री को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने के लिए मजबूर करना होगा, विच कैन इंश्योर प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्जिंग। ये तो है फर्स्ट। और क्या कर सकते हैं हम? सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक मैनेजमेंट। रिवर्स के आसपास प्लास्टिक बैन और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी ड्रिवन क्लीन अप ड्राइव्स विच कैन प्रमोट lively and cleanliness of the river, जिसमें लोग अपनी नदियों की सफाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और क्या कर सकते हैं हम? एफोरेस्टेशन एंड रिवर रेजुविनेशन, वेटलैंड एंड फ्लड प्लेट्स को कंजर्व कर सकते हैं। रिवर्स का सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, वेटलैंड और फ्लड प्लेट इंप्रूव कंजर्वेशन। हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का रिड्यूस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिवर इकोसिस्टम को डैमेज करता है जो हम फर्टिलाइजर फार्म में यूज करते हैं। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स व्हिच कैन फॉलो टू क्लीन अवर रिवर्स। So these are the practice questions. Please note it down. Compare and contrast the Indus, Ganga and Brahmaputra river system in terms of their origin, drainage pattern and hydrography. How do these differences influence agriculture, biodiversity and human settlement in their respective basin? And second question is, discuss the impact of the climate change on the Indus, Ganga and Brahmaputra rivers, focusing on glacier retreat, altered monsoon pattern and water security. What adaptive strategies can India adopt to mitigate these challenges? Third one is, critically analyze the role of Ganga Brahmaputra delta in India's economy and ecology. How do natural disasters like cyclone and flood affect the region, and what measure can enhance its resilience? So these are the practice questions which you have to practice. And the next is peninsular drainage system. हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स को मेनली डिस्कस किया डिटेल में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, बिकॉज हमें पता है कि हमने इंडिया को 2 ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड किया है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम।
So the peninsular drainage system is older than the Himalayan one. This is evident from the broad, largely graded shallow valleys and the maturity of the rivers. इसका क्या मतलब है? Broad, largely graded shallow valleys. जब हमने स्टेज ऑफ द रिवर्स पढ़ा था ना, तो हमने देखा था जब रिवर अपनी यंग स्टेज में होती है ना, तो वो नैरो वैलीज फॉर्म करती है, वी शेप. जैसे वो मैच्योर स्टेज में आती है तो वो वी शेप यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है. अब जैसे ही वो ओल्ड स्टेज में आती है तो वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज होती है. सो दीज वैलीज आर द इंडिकेशन ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट of that particular region through that river system. So we can, by observing the river system, we can also predict their age. So the Western Ghat running close to the western coast act as a water divide between the major peninsular rivers, discharging their water in Bay of Bengal and as small rivulets joining the Arabian Sea. So evolution of the peninsular drainage system. The present drainage system of the peninsular India was shaped by the three major geological events. और कौन कौन से geological events? The first one is Western Ghat, Western Coast submergence, which happened in the early tertiary period. The western part of the peninsula sank below the sea. That distributed the original river system, making it asymmetrical. जो मेरा वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का ना, वो सबमर्ज्ड है बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल. सेकेंड इज हिमालयन अपवेल एंड थ्रू फॉल्टिंग. हमें सबको पता है कि पेनिनसुलर ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे हिमालयन फॉर्म होने से पहले. सो व्हेन द हिमालयस रोज, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला सैंक. दिस क्रिएटेड थ्रू फॉल्ट्स forming rivers like Narmada and Tapi. These rivers lack alluvial and deltic deposits because they follow through rocky cracks. Southeast tilting of the peninsula. The land tilted slightly from northwest to southeast. This made most rivers flow towards Bay of Bengal. मोस्टली जो मेरी रिवर्स है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट फॉलो करती हैं. वाई? बिकॉज द लैंड टिल्टेड स्लाइटली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. ओके, सो जो मेरी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, दिस रिवर आर द शॉर्टर एंड swifter because they originate from the Western Ghat, which are closer to Arabian Sea. Some flow through rift valleys like Narmada, Tapi, making them exceptions in the general pattern of Indian rivers. So these are the western flowing river: Narmada, Tapi, Mahi, Sabarmati, Periyar और शरावती. उसकी लेंथ, ओरिजिन और की फीचर्स क्या है वो आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. So की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की? शॉर्ट एंड स्विफ्ट ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, फॉर्म एस्चुरीज नॉट डेल्टा. This is the important factor. This is the important fact about western flowing river. वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती, वो एस्चुरीज फॉर्म करती है. बिकॉज कमेंट सेक्शन में बताओ. ड्यू टू हाई फ्लो वेलोसिटी, हाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज्ड इन प्रोजेक्ट लाइक पेरियार एंड शरावती. नेक्स्ट इज ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर. अगर हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें ना, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर. सो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमने डिस्कस कर लिया. अब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, दिस रिवर ओरिजिनेट मोस्टली फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो ईस्टवर्ड फॉर्मिंग लार्ज डेल्टा बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. अब यूपीएससी आपके दिमाग के साथ खेलेगा, वो बोलेगा कि वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती.
या फिर वो बोल देगा मोस्टली एस्चुरीज आर फॉर्म्ड बाय ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर रेदर देन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा याद रखना, अगर आपकी रिवर स्टीप स्लोप से फ्लो कर रही है और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाएगी। डेल्टा हमेशा ओल्ड एज में ही, ओल्ड स्टेज में ही बनेगा। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर विच फ्लो टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड सबमर्ज एंड डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मी, सुवर्णरेखा। लेंथ है, की फीचर्स है और रीजन है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको ऐसी टेबल में आप नोट डाउन कर सकते हो। की फीचर्स क्या है? लॉन्गर एंड मिएंडरिंग, ओरिजिनेट फ्रॉम हाईलैंड एंड फ्लोइंग टुवर्ड्स द कोस्ट। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फैक्ट अबाउट मिएंडरिंग बाय रिवर मिएंडर, फॉर्म डेल्टा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन इन फ्लो। और ये कंपैरिजन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में। लेंथ शॉर्टर, लॉन्गर कौन सी होगी? ईस्टर्न। ग्रेडियंट स्टीप होगा, उसका जेंटल होगा। डेल्टा फॉर्म एस्चुरीज एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, फॉर्म लार्जर डेल्टा। सोर्स क्या है? वेस्टर्न घाट सेंट्रल आइलैंड, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। नेविगेशन लेस नेविगेबल और मोर नेविगेबल। इसका मतलब क्या है नेविगेशन का? लेस नेविगेबल और मोर नेविगेबल। इसका मतलब है कि जो मेरी बोट्स है वो कहाँ पे ज़्यादा फ्लो कर सकती है। सेकेंड है इरिगेशन, लेस इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, जो मेरी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। सो दिस इज अबाउट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब नेक्स्ट है इंडिया रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये इंडिया का ना बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जैसा हमने देखा है ना यूएसए के केस में कि यूएसए के ड्रेनेज सिस्टम ने उसको सुपर पावर बनाया। कैसे? ड्रेनेज सिस्टम ने उसके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है कितना रिड्यूस कर दिया उसने, और पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। तो इंडिया ने भी इंडिया रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट प्रपोज किया है ताकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर और स्ट्रांग हो सके, क्योंकि नियर अबाउट 70 to 80% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन दी मॉनसून रेन। सो अगर आप देखो यहाँ पे जो नर्मदा रिवर के नीचे वाली जगह है, दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी मॉनसून। मोस्टली लैंड्स मेरी मॉनसून डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो कि 4-5 साल मेरा मॉनसून अच्छे से नहीं आया तो मेरी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? So let's understand this project through this video. We will going to watch 2 video. पहली वीडियो में हम देखेंगे कि इस रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, क्या है, कब प्रपोज हुआ और किन किन रिवर को हमने कर दिया और किन किन रिवर को हमें करना है। और सेकंड वीडियो में हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि हमें ये करने की जरूरत है भी है या नहीं, कहीं हम इसको करके कोई डिजास्टर तो नहीं कर रहे। इन दोनों एस्पेक्ट को हम इन 2 वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। नदी जोड़ो परियोजना, कैसे जुड़ेंगी भारत की नदियां। भारत अगर किसानों का देश है तो वो नदियों का देश भी है। भारत को भारत बनाने में नदियों की योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम में से बहुत कम लोग शायद ही इस बात पर ध्यान देते होंगे, लेकिन हमें नदियों के रूप में प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार मिला है, जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत की नदियों का एक अहम योगदान रहा है।
अगर हमने नदियों का बेहतर तरीके से उपयोग करना सीख लिया तो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो सकती है। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने की खबरें हम हमेशा से सुनते आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमने अक्सर ऐसी खबरों को भी पढ़ा सुना होगा कि दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। एक ही देश में इतनी विविधता शायद ही हमें दुनिया में कहीं दिखती हो। ऐसे में कई लोग ये सोच सकते हैं कि आखिर भारत की नदियों को आपस में जोड़ क्यों नहीं दिया जाता, जिससे बाढ़ वाले इलाकों का पानी सूखे इलाकों में डाइवर्ट कर दिया जाए। केंद्र सरकार का रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट कुछ ऐसा ही प्लान सामने रखता है। इसके माध्यम से कुल 30 लिंक बनाने की योजना है, जिससे 37 नदियां आपस में जुड़ सकेंगी। ये भारत की कुछ सबसे बड़ी सिविल परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि दुनिया के हिस्से का केवल 4% पानी भारत में मौजूद है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना या रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट भारत में सभी तक पानी को पहुंचाने और इसका सही उपयोग करने के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट में जानें कि कैसे आपस में जुड़ेंगी भारत की नदियां। क्या है रिवर इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट? नदियों को जोड़ने के पीछे प्लान ये है कि देश के कई हिस्सों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि कई और हिस्सों को हर साल बाढ़ की समस्या घेरी रहती है। सिंधु और गंगा जैसी नदियां बारहमासी हैं, यानी इनमें साल भर पानी होता है। इसका कारण ये है कि बारिश के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों से भी इन्हें लगातार पानी मिलता रहता है। जबकि भारत में प्रायद्वीपीय की नदियों के बचे हुए पानी को मैदानी इलाकों से प्रायद्वीप की ओर मोड़ा जाए तो बाढ़ और सूखे की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। इसीलिए नदियों को जोड़ने से भारत में नदी के जल का बराबर वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्टोरेज डैम के नेटवर्क द्वारा भारत की 37 नदियों को जोड़कर जहां पानी ज्यादा है उस इलाके से उसे निकालकर जहां पानी कम है वहां ट्रांसफर करने का प्लान है। इससे ये एक विशाल दक्षिण एशियाई वाटर ग्रिड बनेगा। ये प्रोजेक्ट 2 भागों में पूरा होगा, जिसमें पहला हिमालय में और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में है। पहले भाग में हिमालय में गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे। इसके तहत गंगा और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंदर भी 2 प्लान हैं, जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी वाटरशेड को महानदी बेसिन से जोड़ना है और गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी सिस्टम से जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे भाग में दक्षिण भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। महानदी और गोदावरी का अतिरिक्त पानी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वेगई नदियों में डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना है। योजना का इतिहास। भारत में नदियों को जोड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 19वीं शताब्दी के इंजीनियर आर्थर कॉटन ने दक्षिण एशिया में माल के आयात और निर्यात में तेजी लाने के साथ साथ पानी की कमी और सूखे को दूर करने के लिए प्रमुख भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा था। आज़ादी के बाद 1990 के दशक में डैम के डिजाइनर और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने राष्ट्रीय जल ग्रिड का प्रस्ताव रखा। वे दक्षिण में पानी की भारी कमी और उत्तर में हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के पानी की अधिकता वाले इलाके और मध्य और दक्षिण भारत में पानी की कमी वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाए।
1980 में भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जल विकास परियोजना को 2 भागों में विभाजित किया गया, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं की जा सकी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2005 से 2013 तक कई समितियों का गठन किया और कई रिपोर्टों को खारिज किया, जिससे इस बीच नदियों को जोड़ने के प्लान पर कोई प्रगति नहीं हो सकी। – 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद नदी जोड़ो परियोजना में तीव्र प्रगति देखने को मिली। भारत सरकार ने इस लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। इसके बाद लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यानी केन बेतवा शुरू हो सकी। नदी जोड़ो परियोजना से क्या होगा फायदा? नदियों को आपस में जोड़ने का पहला फायदा तो ये होगा कि इनके जुड़ने से बहुत अधिक वर्षा वाले इलाकों से अतिरिक्त पानी को उन इलाकों में भेजने का एक तरीका तैयार हो जाएगा जो सूखाग्रस्त है। इस तरह ये बाढ़ और सूखे दोनों को बैलेंस कर सकेगा। इससे देश के कई हिस्सों में जल संकट को भी हल करने में मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट में कई डैमों का निर्माण होगा। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लगभग 34,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। भारत की अधिकतर कृषि मानसून पर निर्भर है। जब मानसून कमजोर हो जाता है तो इससे कृषि उत्पादन में भी कई सारी समस्याएं पैदा होती है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने के बाद इसका समाधान किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर पानी की कमी वाली जगहों पर सिंचाई की सुविधा भी प्रदान हो पाएगी, जिससे भारतीय कृषि में और अधिक बढ़ोतरी होगी। नदियों को आपस में जोड़ने से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली यानी इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी के कारण ये प्रोजेक्ट कमर्शियल रूप से भी मदद करेगा। इससे देश के कई हिस्सों में नदियों के जरिए माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में देखा जा सकता है। देश में जल प्रबंधन के मुद्दे पर मेहर शाह समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका शीर्षक था ए 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज वाटर रिफॉर्म्स। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मानसून के बाद जल प्रवाह के गंभीर संकट का सामना करती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन करना भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के सूखने का सबसे बड़ा कारण है। भूजल का आधार प्रवाह सूखने की वजह से हमारी बहुत सारी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। हर साल करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना वरदान साबित हो सकती है। इस परियोजना को पर्यावरण के साथ समन्वय बनाते हुए तैयार किया जा रहा है, जो संभवतः दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस परियोजना के पूरा होने से जहां एक ओर भारत में पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, वहीं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत तैयार होगा। इसके साथ ही देश में परिवहन का एक और नया साधन तैयार होगा। नदी जोड़ो परियोजना भारत के विकास और देश की जरूरतों को पूरा करने में एक वरदान साबित हो सकती है। वहीं देश में इसके निर्माण से दुनिया भर के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा सुंदर उदाहरण पेश कर सकता है। अतुल शाह, डीडी न्यूज। So this is the second video which is about river interlinking, a part to water security or ecological disaster. So let's watch it. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar and Pennar Kaveri have been finalized.
According to this statement by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the 2022-23 budget, the Ken-Betwa linking project at an estimated cost of Rs 44,605 crore will be taken up. According to the centre, this will provide irrigation benefits to 9 lakh hectare farmland, drinking water to 62 lakh people, 103 megawatt hydropower and 27 megawatt solar power generation. But what is river interlinking? It is a system of literally linking a river with surplus water to a water deficit one using a network of canals and reservoirs. A project was proposed way back in 1972 by irrigation engineer K.L. Rao, which would divert floodwaters of the Ganga to Kaveri, which was more than 2,000 kilometers away. The Ken-Betwa project aims to transfer surplus water from the Ken River in Madhya Pradesh to Betwa in Uttar Pradesh to provide relief to the drought-prone Bundelkhand region. Both the rivers are tributaries of the larger Yamuna River. It is argued that the budget allocated for this project is an appeasement preceding the UP elections. Not only this project, but others have been opposed by environmentalists for a long time because of its effects on the local ecology and the water bodies themselves. So the water stream gets affected in both the basins, the donor basin and the recipient basin. In the donor basin, typically there is going to be a huge dam blocking the path of the river, storing that water in the river water for the transferring that water to the recipient basin. Also storing it for across the year so that it is available for transfer to the other basins. So the downstream portion of the donor basin, there will be almost no water in non-monsoon months, in post-monsoon months. And the upstream portion, there will be no flow, it will be only a reservoir, stagnant water. And the further upstream, typically what happens is that because they want to ensure that the water continues to flow to the dam, they also restrict the water use in the upstream part of the basin. And in the recipient basin, there will be many other issues including waterlogging, salinization, unsustainable cropping pattern and so on. According to a study published in Current Science in December 2021, the Ken-Betwa project will lead to the submergence of a major area of the Panna Tiger Reserve, not only endangering the tigers, but also their prey, such as the cheetal and the sambar. The project will incur a loss of about 58 kilometers of the tiger habitat within the reserve, and an indirect loss of 105 kilometers because of loss of habitat and connectivity due to submergence. Additionally, it will also lead to a loss of 2 million trees. The study mentions that the submerged area has rich tree density and biodiversity. The reserve was included in a global network of biosphere reserves by UNESCO in 2020, along with being touted as a critical tiger habitat. In MP, the districts covered by the 230-kilometer long canal are Tikamgarh, Panna and Chhatarpur, along with Jhansi, Banda, Lalitpur and Mahoba districts of UP. River interlinking is not the only way to achieve water security. There have been examples within Bundelkhand, like Jakhni village, who have achieved water self-sufficiency through efforts like the construction of farm ponds, restoration of water bodies, collection and utilization of grey water, raising of farm bunds, and intensive plantation of trees since 2014. We understand the significance of this India River Interlinking project and also critically analyze this project through second video. So, note it down. India River Interlinking project aims to address water scarcity and flood management by transferring water from surplus to deficit basins. However, critics argue that it poses serious environmental, social and economical challenges. Considering the ecological sensitivity of river systems, the displacement of communities and the financial burden of such large-scale projects, do you think river interlinking is a sustainable solution for India's water crisis, or should the focus shift towards localized water conservation methods?
critically analyze the feasibility of river interlinking in India. Do you think decentralized water management strategies would be a more sustainable alternative? Substantiate your answer with real-world examples. So, thank you. We discuss about the Indian drainage system. इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है, जो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है. हिमालयन रिवर्स लाइक गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, these are perennial, fed by glacier and monsoon, while peninsular rivers like Godavari, Krishna, Kaveri are rain fed with seasonal flow variation. So these rivers not only support agriculture, drinking water and hydropower, but also have culture and religious significance. So I hope कि मैं जस्टिस कर पाया हूँगा इस टॉपिक को, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को. हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. जय हिंद.